السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کا اس کے ٹیوشن کلاسز میں سواگت ہے۔ آج ہم کلاس 10 کا اردو کا پیپر سالو کریں گے جو آج 21 فروری 2025 کو ہوا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ دیا ہے حصہ 1 نثر، سوال نمبر 1 کا ہے الف، درج ذیل درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا سوال ہے ذیل کا شفقی خاکے مکمل کیجیے۔ تفریحی مقامات، جو تفریحی مقامات آئے ہیں اس میں وہ ہے نینی تال اور آٹو کمنڈ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ دوسرا مصنف اور ہمسائے کی خریدی ہوئی چیزیں، تو اس میں جو چیزیں خریدے فریج اور ٹیلی ویژن سیٹ، تو یہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 2، نینی تال اور آٹو کمنڈ کی سیر کو نہ جانے سے متعلق مصنف اور ہمسائے کی غلط بیانی کو تحریر کیجیے۔ تو یہاں پہ ہے جو ہم اس کا جواب لکھ سکتے ہیں، پورا یہ پیراگراف ہے اوپر سے۔ 2 سال ہوئے تم نے کہا تھا میں بیوی اور بچوں کے ساتھ کسی صحت افزا مقام غالباً نینی تال جا رہا ہوں، تو یہاں سے لکھ سکتے ہیں ہم ابھی سگائی تک نہیں ہوئی، تو یہ اس کا جواب اتنا آئے گا، یا اس میں سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں سوال کے حساب سے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے قسطوں پر چیزیں خریدنے پر اپنی ذاتی رائے تحریر کیجیے۔ تو اس پر اپنی ذاتی رائے تحریر کرنا تھا سوال نمبر 3 میں۔ اس کے بعد میں بے، درج ذیل درس اقتباس کا بغور مطالعہ کیجیے اور دی ہوئی سرگرمی ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ تو پہلا سوال ہے اس کا، عورتوں کے مزاج اور نفسیات کے پیش نظر لکھی گئی نظموں کی مدد سے خاکہ مکمل کیجیے۔ تو نظمیں جو لکھی گئی ہے اس کا جواب ادھر ہے، جیسا پالنے گیت، بھوپالی، لوری نامے، جھولنا نامے اور سہاگن نامے، تو یہ 5 ہے، تو کوئی ہم کو اس میں سے 4 لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، فقیر اللہ شاہ کی فکری نامے کے پیغام کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو اس کا جواب ادھر ہے، یہاں سے فقیر اللہ شاہ نے البتہ اپنے فکری نامے میں کہا ہے کہ یہاں سے لے کر تو آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں، میں گر جاؤں گا تک کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے عورتوں کی تعلیم وقت کی ضرورت ہے، اپنی رائے دیجیے۔ تو عورتوں کے لیے جو تعلیم ہونا چاہیے، ملنا چاہیے، اس کے بارے میں اپنی رائے آپ کو نے دی ہوں گی۔ اس کے بعد سوال نمبر جیم ہے، جیم کا میں ہے درج ذیل کے غیر درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کیجیے اور دی گئی سرگرمی ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ تو اس کا پہلا سوال ہے نیچر کی دل فریبی سے متعلق شفقی خاکے کو موضوع الفاظ سے لکھیے۔ تو اس میں جو پیراگراف میں ہے یہاں پہ وہ ہرا ہرا سبز زار، وہ سہانا سما، وہ صبح کی بہار، وہ تر و تازہ ہوا، وہ اجلی کرنیں، یہ 4 ہے، تو وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 2، تو 2 میں ہے اقتباس کی روشنی میں کسانوں کی محنت کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو ہم کو اس میں اپنے الفاظ میں بیان کرنا تھا۔ اس کے بعد ہے حصہ 2 نظم، سوال نمبر 2 کا الف ہے، درج ذیل تدریسی نظم کے اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیوں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ تو پہلا سوال ہے درج ذیل خاکے ہدایت کے مطابق درسی نظم کی مدد سے مکمل کیجیے۔ جیسے کہ پہلا ہے نظم میں آئے زیر اضافت والے الفاظ، جس میں زیر لگے ہوئے ہیں، جیسا دل، دید اور بہار گل۔ اس کے بعد میں ہے نظم میں آئے واو عطف والے الفاظ، تو ابلا و سخت، جام و مینا۔ اس کے بعد میں ہے سوال نمبر، جیسا یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، یہ اس میں جواب ہے اس کے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، شاعر کے لیے دل کا مشورہ تحریر کیجیے۔ تو دل کے بارے میں جو شاعر نے کہا، تو اوپر کے جو دوسری اور تیسری لائن ہے، ہوا میل دل دیدے سر و سامان کا، کہا دل نے اب تاک جا بند رہیے۔ اس کے بعد لاسٹ کے 2 لائنیں ہیں، کبھی دل کی تقریر سے ہونا شادہ، حقیقت ہے سیر چمن دلیر با ہے۔ تو یہ 4 لائنیں اس کے جواب ہے۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 3، درج ذیل شعر کی تشریح اس طرح کیجیے کہ اس کا معنوی حسن واضح ہو۔ تو اس کی جو ہم کو تشریح ہو جائے گی، اس کا حسن واضح ہو جائے، تو اس کا جو جواب ہے اس کی تشریح کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے بے، درج ذیل غزل کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ غزل کو مد نظر رکھتے ہوئے چوکن مکمل کیجیے۔ تو پہلا ہے وہ شے جو شاعر کو کبھی تنہا نہیں ہونے دیتی۔ تو اس کی جو لاسٹ لائن ہے جس میں انہوں نے کہا ہے ظفر مر جاؤں گا
तो यहाँ से है जिस दिन परेशानी से, तो पहले का जवाब आएगा। उसके बाद में वो जगह जहाँ से शायर सूरज बन के निकलेगा, तो यहाँ पे ये लाइन दी हुई है। दूसरी लाइन, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से, तो अपनी पेशानी से उसका जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, सवाल तीसरा है उसका, वो शय जिसमें शायर नज़र आएगा, तो आंसुओं में। उसके बाद चौथा है, वो इस्तारा जो घर के ताल्लुक़ से शायर ने खुद के लिए इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे है वो अगर निकलूँगा तो घर वालों की नादानी से, ये उसका जवाब है। उसके बाद में है सवाल नंबर 2, शायर ने ज़माने को जो चैलेंज किए हैं उसे वाज़ेह कीजिए। इसका जो जवाब है वो लास्ट के 4 नैना है। ज़मीर वक्त में पेवस्त हो कि मैं फंस की सूरत, ज़माना क्या समझता है कि आसानी से निकलूँगा, यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, ज़फ़र मर जाऊँगा जिस दिन परेशानी से निकलूँगा। इसमें चैलेंज, शायर जो है वो चैलेंज कर रहा है। लास्ट के जो 4 लाइनें हैं यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ये इसका 2 नंबर का जवाब है। फिर उसके बाद 3 है, शेर का मतलब इस तरह लिखिए कि शेर का तसुराती हस्न वाज़ेह हो जाए। तो मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, अगर निकलूँगा तो घर वालों की नादानी से निकलूँगा। तो इसकी हमको इसकी वाज़ेह करना है, इसकी हमको तशरीह करना है। उसके बाद में जिम का है, दर्ज झैल शायरी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके इस्तिसानी कलाम पर मबनी सरगर्मी हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो पहला सवाल है, दर्ज झैल शायरी इक़्तिबास से मुतालिक खाके मुकम्मल कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पे है शायरी इक़्तिबास और काफ़िया। काफ़िया मतलब राइमिंग वर्ड्स आते हैं वो इंग्लिश में, जिसको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, जो एक जैसे आवाज़ आते हैं। जैसे यहाँ पे खो जाता, हो जाता और तीसरा है सो जाता, तो कोई 2 लिखना था। और ये जो सिन्फ है ये है रुबाई, और शायर का जो नाम था शाद आरफी, शायर का नाम है शाद आरफी। उसके बाद में सवाल नंबर 2, मुज़क्किरा बाला शायरी इक़्तिबास का मरकज़ी ख़याल बयान कीजिए। तो इसका जो मरकज़ी ख़याल है उसको हमको बयान करना है। उसके बाद में है हिस्सा नंबर 3, इजाफ़ी मुताला। इसमें 3 सवाल आते हैं, तो कोई आपको 2 करना था। खलीफा जो है सवाल नंबर 3, दर्ज झैल में से कोई 2 सरगर्मी हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला है, खलीफा का भेस बदल कर मौसिल को सौदागर बनने की वजह लिखिए। तो आपने इसका जवाब लिखे होंगे। सवाल नंबर 2 का है, अबुल हसन के किरदार को वाज़ेह कीजिए। तो इसका जो किरदार था तो उसको वाज़ेह करना है जो आपने किए होंगे। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, ड्रामे में बयान करदा मकामात के नाम लिखिए। तो जो ड्रामे में नाम आए तो इसके आपने लिखे होंगे इसके जवाब भी। उसके बाद है हिस्सा 4, कवायद। सवाल नंबर 4 का अलीफ है, दर्ज झैल सरगर्मी हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला सवाल है, झैल के जुमले से मुफर्रद मुरक्कब मखलूत जुमलों की शनाख्त कीजिए। मराठी में एकनाथ के भारोट बहुत मशहूर है, तो ये मुफर्रद है, सीधी सीधी एक लाइन है। उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी की तराश सीख ली और दर्जी का किस्सा ही पाक हो गया। तो इसका जो जवाब है वो मुरक्कब है। उसके बाद में सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल मुहावरों को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इसका मतलब वाज़ेह हो जाए। पहला है, दिवाला फट जाना, नुकसान होना। कल समीर के अब्बू को भैंस के कारोबार में नुकसान हुआ। दूसरा है, तकिया करना, भरोसा करना। इंसान अल्लाह ताला पर बहुत भरोसा करता है। उसके बाद है सवाल नंबर 3, दर्ज झैल जुमलों के लिए कहावतें लिखिए। जिसमें ताकत हो उसी का कब्ज़ा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसके बाद है, बुरा आदमी समझाने से नहीं मार खाकर ही मानता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसके बाद है सवाल नंबर 4, दर्ज झैल जुमलों के सामने सही सिन्फ का नाम लिखिए। तो पहला है, वो नज़म जिसमें 4 मिसरे होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे शेर कहते हैं। उसके बाद में वो बयानिया सिन्फ जिसमें सफ़र के हालात नए खुतो मालूमात दर्ज होती है, तो सफ़रनामा। जब सफ़र का हालात आ गई तो सफ़रनामा। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल शहर की सनत का नाम लिखकर सनत की तारीफ़ लिखिए। तो अबर की तरह से कर देवेंगे आलम को निहाल, हम जिधर जावेंगे ये देदाए गरिया लेकर। तो ये सनत मुगालबा है, जहाँ पे
शायर चैलेंज कर रहा है तो ये सनत मुगालबा है। तारीफ़ है इसकी जब शायर अपने शेर में किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। मतलब सनत मुगालबा उसे कहते हैं जहाँ पे शायर बढ़ा चढ़ा के बात को पेश कर रहा, तो इसमें भी वो शायर बढ़ा चढ़ा के बात पेश कर रहा है। उसके बाद बे है, बे का है हिदायत के मुताबिक ज़ैल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। तो उसका पहला सवाल है, दिए गए जुमले में से ज़ेर इजाफ़त की तरबियत पहचानिए। तो यहाँ पे आसान है ये पहला, परवीन के शरीक हयात वारिस की आंखें नींद में डूबी हुई थी, तो इसका जो जवाब है शरीक है। दूसरा है हुर्फ़ जार पहचानना है, हुर्फ़ जार तलाश कीजिए। सारी खजूरें अपने ये हुर्फ़ जार है, साहबा रज़ी अल्लाह को खिला दे, तो अपने जो है वो हुर्फ़ जार है। उसके बाद में बे का दो है, दिए गए जुमले में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह तलाश करके लिखिए। तो पहला जो है हज़रत वो मुज़ाफ़ इलैह है और इंतहा पसंद ग्रोह जो है वो मुज़ाफ़ है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल फ़िक्रों के लिए मुनासिब लफ्ज़ तहरीर कीजिए। दूर तक पत्थर फेंकने का एक आला जो होता है वो मुंजनिक होता है। दूसरा, रूह को तकलीफ़ देने वाला, रूह फरसा। उसके बाद है ज़ख़ीरा अल्फाज पर मबनी दर्ज झैल सरगर्मी हिदायत के मुताबिक हल कीजिए। पहला है, दर्ज झैल अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज लिखिए, जैसा जिससे हम आवाज़ आए, एक जैसा आवाज़ आए, जैसा अदालत, अदावत, काम, नाम। उसके बाद दो है, दर्ज झैल के मुताज़ात मतलब उलट अल्फाज लिखिए। इज़्ज़त का हो जाएगा ज़िल्लत और आसान का हो जाएगा मुश्किल। उसके बाद है सवाल नंबर 5, मुनासिब साबिक़ा लायका हमको करना है बामानी, हमराज और गर जादूगर। उसके बाद में सवाल नंबर 5 है तहरीर इख्तिलाती सरगर्मियाँ, तो ये आपको करना था। तो सवाल नंबर 5 का अलीफ है, दर्ज झैल इश्तिहार की मदद से रस्मी या गैर रस्मी ख़त लिखिए। ये ख़त लिखना था आपको, रस्मी या गैर रस्मी, या फिर दो, एक तो वो करना था या तो ये करना था 2 नंबर, दर्ज झैल इक़्तिबास का बगौर मुताला करके खुलासा लिखिए। तो खुलासा थोड़ा आसान होता है, जैसा कि हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग पाए जाते हैं, तो जैसा कि हम यहाँ लिख सकते थे, इसके हेडिंग डाल दिए हमारा माशरा, और यहाँ पे आप इसको थोड़ा खुलासा कर देते थे इसका, ठीक है। तो उसके बाद सवाल नंबर बे है, बे में कोई दो करना है, तो दर्ज झैल नुकात की मदद से इश्तिहार तैयार करना है। जो इश्तिहार बहुत आसान होता है, आपने करे में इसका इश्तिहार तैयार। दूसरा सवाल है, दर्ज झैल नुकात की मदद से खबर तहरीर कीजिए। जैसा कि यहाँ पे हमको मुंबई में मूसलाधार बारिश के बारे में हमको यहाँ खबर लिखना था। उसके बाद सवाल नंबर 3 है इसका, दर्ज झैल नुकात की मदद से कहानी मुकम्मल कीजिए। तो ये जो कहानी है, टोपियों का सौदागर जंगल से बाग की तरफ गुजरना, ये जो कहानी है इसको हमको मुकम्मल करना है। उसके बाद में जीम, तो बे में कोई 3 में से कोई 2 करना है। उसके बाद में सवाल नंबर जीम है, दर्ज झैल में से किसी एक उन्वान पर 100 से 120 अल्फाज में मुश्तमिल मजमून तहरीर कीजिए। तो पहला है कौमी यकतहजी की ज़रूरत और अहमियत, दूसरा किताब की आप बीती, और तीसरा है उफ़ ये मेरे हमसाए। उसके बाद में तीसरा उफ़ ये मेरे हमसाए, तो तीनों में से कोई एक आपको करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम इसको आगे और अच्छे से डिटेल में इसको समझेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। खुदा हाफिज़।